Fair enough. Others, how is it? कैसे रहे एग्जाम्स? The way she was just talking. Ma'am, Probably some of you haven't appeared for other exams, right? ठीक yes, है. ma'am, I think so. हाँ मतलब मुझे पता है काफी लोग ने और किसी के लिए अप्लाई नहीं किया है. ठीक है, तो चलो टेंसेस पढ़ते हैं अब. अच्छा, टेंसेस किस किस को याद है ठीक से? कह नहीं सकते क्योंकि एक बार कह दिया तो फिर तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, राइट? तो चलो ठीक है, प्रेजेंट सिंपल से याद स्टार्ट करते हैं. कौन मुझे बताएगा कि प्रेजेंट सिंपल कब कहाँ कैसे यूज होता है? बताओ. जो काम हम डेली करते हैं, लाइक मैं मैम खाता हूँ रूटीन तो. और हैबिट, सिंपल फैक्ट. Right, so that's right. Habits, general truths, repeated actions, unchanging situations, or fixed arrangements. Right. So something like when I say I eat, yeah, you sleep, she reads. Right. This is something which you do daily. या फिर as a routine, as a habit करते हो, they work. Right. Islamabad is the capital of Pakistan. Right. तो वो present है और वो रहेगी. मतलब वो है. That's a fact. The sun sets in the west. ये एक fact है. You can't change it, right? So ये हुआ आपका simple present. Is that clear? And simple ma'am. Yes, present, ma'am. as the name says कि simple है, present है, तो ऐसा नहीं है कि present में जो भी चल रहा है उसको आप simple present में डाल दो, right? क्योंकि अगर आप simple जो काम अभी चल रहा है वो तो आपका continuous हुआ ना, isn't it? Yes, hello ma'am. Yeah. Tell me. Yeah, sorry, just now I've joined. मैम आपने क्या बोला था मतलब? अभी हम सिर्फ simple present पे हैं. Okay, fine. Yeah, thank you ma'am. हाँ, और कुछ भी नहीं कवर हुआ है अभी. ठीक है? Yeah, okay, thank you ma'am. Okay, no problem. So are we clear with simple present? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Present continuous कौन बताएगा? जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, मतलब चल रहा है. I'm reading a book. हाँ, मैंने एक और चीज बताई थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब यूज करते हैं. ING form. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इनफैक्ट दो और आपको चीजें बताई थी. मैम ये बताया था, लाइक माय अंकल इज कमिंग ऑन नेक्स्ट मंडे. दिस एग्जांपल वाज देयर, बट मतलब मेरे अंकल नेक्स्ट मंडे आ रहे हैं, तो जो चीज फ्यूचर में कंटिन्यूअस होगी, बट दैट फ्यूचर प्लान्स या अरेंजमेंट बेसिकली आपको पता है कि ये काम संडे को होने वाला है कि अंकल आ रहे हैं, राइट? जी जी, है ना, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं. दैट्स वन. और दूसरा मैंने यूज बताया था some things which are repeated over a period of time irritating habits हो जाती हैं, right? जैसे कि You are always coming late. मैं ये भी कह सकती हूँ you always come late. बट अगर एक हैबिट है जो बहुत टाइम से रिपीट हो रही है, इट्स एन अनोइंग वन, सो यू आर ऑलवेज कमिंग लेट. ठीक है? ओके. So is this clear? Something which is going on, activities happening at the time of speaking, future plans or arrangements, something which is changing, improving or developing. ये आपका हुआ my English is improving, your English is improving, right? वो improve कर रही है. Right now तो नहीं कर रही, but as a process कर रही है, right? Yes, ma'am. ठीक है. Okay. Now comes the trickier one. Present perfect. Something that just got over. Just finished. ठीक है. What the else? use of Probably something that was started in past and it is still
in continuous form. Mhm. Okay. And use of third form of verb. ठीक है, ठीक है, तो चलो देखते हैं. देखो, she has just finished her work. ये तो वो हो गया आपका जो something which is just got over, right? जी. फिर I have lived in Delhi all my life. ये क्या हुआ कि पास्ट में भी यही चीज ट्रू थी और वो चीज अभी भी चल रही है. यू आर स्टिल लिविंग इन दिल्ली. आई हैव लिव्ड मतलब मैं रही हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है अभी नहीं रहते हो, अभी भी हो. ठीक है. फिर आई हैव बीन टू कश्मीर. ये क्या हुआ? Talking Ma'am, about an past experience. experience. हाँ. So this is a past experience, right? Something which happened in the past but has an effect on the present, which is कि आपको अब कश्मीर के बारे में पता है, right? या फिर I have had this before. मतलब मैंने पहले पहले मैंने कहीं खाया है या फिर ये मेरे पास पहले रहा है, मतलब मुझे इसके बारे में अब पता है, right? She has finished all the cookies. That means there are none left for you, right? Okay. Is present perfect clear? Yes, ma'am. The one sentence you said in present perfect was, I have had this before. Mm-hmm. So because प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज यूज होता है, लेकिन यहाँ हैव के साथ हैड यूज करके हम बता रहे हैं, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगा. अगर वो हैड होता तब वो पास्ट परफेक्ट होता ना. ये कंफ्यूज हो गई मैं. देखो जी. इसमें कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है. ऐसी चीज अगर हम देखें, जी. एक चीज आइडेंटिफाई करके आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज द मेन वर्ब हियर एंड व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब हियर या हेल्पिंग वर्ब? Main is having that thing, no? नो, आई हैव हैड दिस बिफोर. बातें मत घुमाओ. हैविंग नहीं, हैव या हैड में से कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है? अच्छा, हैव और हैड में हैव. हैव क्या है? मेन. हैव मेन वर्ब है और हैड क्या है? ऑक्सिलरी. चलो अब आई हैव लिव्ड इन दिल्ली ऑल माय लाइफ, इसमें मेन वर्ब क्या है और ऑक्सिलरी क्या है? लिविंग वुड बी द मेन. ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब से पहले आया. हाँ जी, समझ गए. तो हैव हैड में ये उल्टा कैसे हो गया, ये बताओ. जी जी. आप हैव वुड बी द, शुड बी, it is definitely not should be auxiliary verb, and had is main. हाँ एग्जैक्टली. ठीक है, अभी क्लियर हुआ? जी जी. ठीक है, एवरीवन इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So the conclusion is main verb should be in the present perfect form, right, ma'am? मेन वर्ब शुड बी, Not main, sorry. Auxiliary verb should be in the present perfect form. ऑब्वियसली. मतलब आप ये Okay. देखो, हैज हैव ऑक्सिलरी वर्ब ही तो होते हैं. आई हैव लिव्ड, आई हैव फिनिश्ड, राइट? हाँ जी. हाँ. ओके, समझ आया. Thank you. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये कौन सा टेंस होता है? The verb Ma'am. which started in okay, आप बोलिए. नहीं, बोलो बोलो. माही बोलो. नहीं, मुझे ये लिखा हुआ है, तो आप बोलो, आपका प्रैक्टिस होगा. Okay. You're asking me? बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. Ma'am, something like I have been doing something like that. I don't know. I have been doing this work since yesterday. I don't know, since something. I don't know, ma'am. I'm not being able to form a sentence. right now. Basically something which started in the past and it's still going on. Yes, ma'am. I have been doing this work since yesterday or something. Yes, that's right.
something which started in the past and it's still going on, और ये focus किस पे करता है? Duration पे. कैसे? It has been raining since yesterday. मतलब कल से बारिश हो रहा है, अभी तक हो रहा है, हो रही है। ठीक है. He has been reading philosophy since 2005. मैम बेसिकली 2005 से अब तक फिलोसफी हाँ. पढ़ रहा है। So हाँ, basically like a 2005 philosophy. से पढ़ रहा है और पढ़ अभी भी रहा है, right? Yes, ma'am. Something like a philosophy major है. So yes, ma'am. ठीक है. So they have been playing cricket for years. सालों से खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं. So basically past में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, right? Yes, ma'am. ठीक है. अब that is one. Second thing, आप ये देख रही हो मैंने लिखा है since 2005 और for years. क्या फर्क है दोनों में? मैम सिंस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मोमेंट को बता रहा है और फॉर इज ड्यूरेशन पीरियड को बता रहा है। हाँ, that's right. So since हम कब यूज करते हैं? When we talk about a particular point. More definitive है ना मैम. I think since हाँ, yeah. right. Since 2005, since yesterday, since that day, right? तो जब Yes, हम ma'am. point से करते हैं, right? But जब हम बोलते हैं ना for years, for 10 years, for 15 years, Yes, ma'am. right? तो वो तब हम for use करते हैं जब हम period की बात करते हैं. Or Okay? ma'am, maybe we are not very sure with which year it started. Maybe. हाँ, तो जब आप duration की बात करते हो तो आप for use करते हो. Yes. Okay, is it clear? Yes, So ma'am. it would be for 2 days. For 2 Not- days. हाँ. Okay. Not since 2 days, but if you say let's say since yesterday, since Last 2 days तो since हो जाएगा. क्यों? Since last 2 days में हमने बताया वो पीरियड स्पेसिफिकली एक बात इसलिए बताओ, since क्यों? कीजिए. अरे for 2 days और for last 2 days इनमें क्या फर्क हुआ? इसमें मैं हमेशा ही कंफ्यूज होती हूँ मैम. देखिए जैसे आपने बताया ना दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट रुको, फॉर रुको. इयर्स. अरे रुको, हाँ जी. Okay. ठीक है? Sentences देखें? जी. ठीक है, चलो एक एक करके सारे sentences देख लो, all of you. अब पहला सेंटेंस, I have been reading since yesterday. क्या मतलब हुआ? मैं कल से पढ़ रही हूँ. I have been reading for 2 days. मैं 2 दो- दिन से पढ़ रही हूँ. I have been reading for the last 2 days. 2 days, sorry. मैं बीते पिछले 2 हुए दिनों पढ़ से रही हूँ. I have been reading since last 2 days. मैं पिछले 2 दिन से पढ़ रही हूँ। दोनों क्या का वही मतलब निकला ना. Since सही है गलत है? मैम सिंस तो गलत है। गलत है यहाँ पे. अब मैं लास्ट लगाऊं कि ना लगाऊं, गलत तो है ही ना. Yes, ma'am. ठीक है? दरकार नहीं हम है ना. ड्यूरेशन last पीरियड को वाला. बता रहा है तो फॉर ही यूज होगा। हाँ, अब उसमें हो या ना हो लास्ट क्या फर्क पड़ता है? Is that clear?
Yes, Okay. मैंने रिपीट कर दिया है. अब इस पे आ जाओ. I read for 2 days. Is this fine? बताओ. मैम उसका मतलब तो वही है कि भी मैं 2 मैं दिन 2 अभी दिन 2 के दिन लिए पढ़ा है. पढ़ा. हाँ सिर्फ 2 दिन पढ़ाई की है बस, वही मतलब हम्म. उसका. I read for last 2 days. मैम सेम मीनिंग. करेक्ट है बस थोड़ा सेंटेंस. सा इनकम्प्लीट ही यहाँ लग रहा है. फॉर लास्ट 2 days of what? It can be last 2 days of September, last 2 days of August. पता नहीं, तो थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है. यस मैम. I read since 2 days. बताओ. मैम सिंस तो फिर से गलत ही है. I feel this sentence is wrong. It's incorrect. ये लास्ट वाले दोनों सेंटेंसेस गलत हैं क्योंकि सी फॉर और सिंस हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते. कोई एक मीनिंग भी तो होना Meaning चाहिए होता है. फॉर और सिंस का. सिंस तो देखा जाए तो हमारे किसी टेंस में यूज होगा, अदरवाइज तो इट्स रॉन्ग, राइट? यस मैम. इज इट क्लियर नाउ? Ma'am, third last is correct or not? I read for last 2 days. Last 2 days of what? Incomplete a sentence. So incorrect. हाँ, incomplete, not incorrect but incomplete. उसका ऐड ऑन कुछ होना पड़ेगा. हाँ. Is this clear now? ये since और for वाला जो है. मैम आई रीड फॉर 2 days इज करेक्ट. हाँ, I read Read. नहीं, I read है. Read होता है. I read for 2 days. Yes, that's correct. Read, read, ये होती हैं 3 forms. Is it ओके. clear? यस. Yes मैम. Great. ठीक है, क्लियर है ये टेंस. मूव करूं आगे? Yes हाँ मैम. जी. ऑल राइट. ओके, अब पास्ट सिंपल कौन बताएगा? जो पास्ट रूटीन होता है. समथिंग ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट. Something that happened in the past, something was true for some time in the past. So let's say simple statement of events in the past, right? जब आपको सिंपल बोलना होता है ना, ये हुआ था, मैंने ये किया था. We went to Sundarbans for holiday. She studied for 10 hours. I met him a long time ago. I read yesterday. मतलब कुछ भी जो पास्ट में हुआ था. मतलब जब आपको बताना होता है ना कि हाँ it took place. अब कब, क्या, कैसे, कितने दिन पहले, ये मैटर नहीं करता कि कल हुआ था तो सिंपल पास्ट करोगे, बहुत पहले हुआ था तो कोई और टेंस करोगे. डजंट मैटर. Okay. व्हाट मैटर्स इज कि पास्ट में हुआ था. ठीक है, अब कब हुआ था वो तो हम yesterday, 2 days ago, 20 years ago वो तो हम बता देंगे, राइट? Yeah. ओके. मैम वापस स्क्रॉल करिएगा ऊपर. बताओ. मैम जस्ट राइटिंग इट डाउन. हाँ. डन मैम. ओके. ये कौन बताएगा? It's something like for example, I was doing my work till yesterday. Something which was in progress in the past. Yes. ठीक है? Something like everyone was shouting, he was sleeping. So basically जैसे present में कहते हैं ना, कुछ हो रहा है. Past continuous में कुछ हो रहा था, right? Is it clear? हाँ. Great. हाँ, important tense, past perfect. याद है? मैम दो पास्ट एक्शंस, एक जब पहले शुरू हुआ और एक बाद में. Absolutely. Past perfect किसके साथ यूज करेंगे? Like that example, I had this before. हाँ? That example which was given present perfect also, I have had this before का, यहाँ पे I had this before. नहीं, but और उसमें co-related रहेंगे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे. डिपेंडेंट. हाँ, मतलब I had तो ठीक है, लेकिन उसमें एक और हमें
एक्टिविटी चाहिए. I had this before 2011, let's say, right? कि मैंने उससे पहले ही something started and ended. Okay, it took place. Is that clear? पास्ट में ही होकर पास्ट में ही खत्म, मतलब. हाँ हाँ. जी. I something like maybe I had come. That Yeah, same I had come. Suppose I had completed my work before you arrived, or by the time you arrived. Something. Yeah, the bus had left when we arrived. Yeah, हाँ, something हाँ, like said that. left to right. Exactly, यही होता है. ठीक है? Okay. Okay, look at this. Used for earlier of the two actions. अब ये देखो. The train had already left when I arrived. कौन से दो actions हैं और कौन सा पहले हुआ? मैम पहले ट्रेन गई, देन अराइवल हुआ. Okay. Second, the thief had escaped when the police arrived. मैम पहले चोर भागा, उसके बाद पुलिस आई. जा चुका था, गायब हो चुका था. ठीक है. Thief पहले जा चुका था, तो उसके साथ हमने past perfect यूज किया. ठीक है. अब past perfect continuous. Ma'am, the actions that are happening in the past, like they are continuous. Yes, ma'am. Anything else? Like Also she had till a been particular doing, point. I'm sorry. had been doing. Had been doing when? A particular point. Right. Something which was in progress till a particular point of time. Has been में तो since आता है ना, तब से चल रहा है. ठीक है. Past perfect continuous में आता है तब तक चल रहा था. Is that clear? ओके. कोई प्रोग्रेस वर्क लेकिन वो पास्ट में ही खत्म होगा, ऐसा करके. पास्ट में ही खत्म हो जाएगा. I had been learning Hindi till 2005, something like that. तब तक सीख रही थी. ठीक है. हाँ जी. Okay. Something like this. I had been driving for 8 hours when it started raining. जब बारिश हुई उससे पहले मैं 8 घंटे के लिए ड्राइव कर रहा था. I had been looking at the painting for 30 minutes when my driver arrived. कि 30 minutes हो चुके थे तब. Is that clear? Duration बता रहे हैं. ठीक है. मैम 1 सेकंड प्लीज पॉज. वहाँ पे राइट, आई एम राइटिंग. Ma'am, ma'am, can you share this PDF Yeah, I'll do that. as well as for pronoun and the first class pronoun? Yeah. Thank you. Okay. प्रोनाउंस वाला YouTube में भी डल गया है शायद. Should be there. Yeah, it's there, members. I just want the PDF for this reference. अच्छा नहीं, PPT का PDF तो नहीं दूंगी. वो इसलिए you are supposed to attend the class and understand and write. Yes, ma'am. Not everything is going to be ready made. समझ में तभी आ. सबको हम शॉर्टकट चाहिए ना मैम आजकल. प्लेटर में चाहिए ना मैम. I think PPT का PDF तो मैंने कभी भी नहीं दिया होगा. नहीं मैम. नहीं मैम नहीं. वो नहीं दूंगी. मैम लिख लिया. Okay. Future simple. ये क्या होता है, कहाँ यूज होता है? Like future Action that will be yeah. happening in the future. Yes, simple statement of Simple. events which will I happen. will do it tomorrow. Right. Yes, क्या ma'am. बोला आपने? I will do it हाँ. tomorrow. Exactly. So something like she will come tomorrow. I will see you tomorrow. We will get in touch with you. Right? Hmm. Okay. Future continuous. Ma'am, I will be working tomorrow. Yeah, or I will be doing this tomorrow, or doing this work tomorrow. She would be cooking tomorrow.
something continuous work in future. हाँ, जो फ्यूचर में चल रहा होगा, शी विल बी कमिंग टुमारो, व्हेन विल यू बी स्टार्टिंग, आई विल बी गोइंग टुमारो, राइट? सो ये भी सिंपल सा टेंस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता. वुड का भी यूज करके कोई एक सेंटेंस बता दीजिए फ्यूचर Yes. कंटिन्यूअस में. हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम विल भी यूज कर सकते हैं, वुड भी यूज कर सकते हैं. कोई मुझे डिफरेंस बताएगा, विल कब यूज करेंगे और वुड कब यूज करेंगे? When we are very much sure, then will. हाँ, विल में श्योरिटी ज्यादा होती है, and this is what I'm talking about the future. विल में It would श्योरिटी, rain tomorrow. हाँ, विल में श्योरिटी ज्यादा होती है कि I'll definitely come, I would come. तो वुड में श्योरिटी कम होती है, और मे और माइट तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी वाले होते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी. ठीक है, दैट्स वन. कैन आपका एबिलिटी होता है, राइट? आई कैन कम, दैट्स एबिलिटी. आई कुड कम, उसमें आपका पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है. जस्ट वन यूज ऑफ कुड विच यू शुड रिमेंबर इज, लेट मी टेल यू, जनरली हम कहते हैं कैन आई कम इन. ठीक है, कैन आई कम इन, इट्स वेरी फ्रेंडली, राइट? So may I come? एक मिनट रुको. Yes, ma'am. कैन यू साइन हेयर? ठीक है, ये हम डायरेक्टली किसी को पूछते हैं कि जिससे हमारा फ्रेंडली रिलेशन है, या फिर मतलब ऐसे ही कैजुअली पूछते हैं, राइट? पूछते हैं. लेकिन जब हम बहुत पोलाइट होते हैं तो हम पूछते हैं कुड यू साइन, कुड, राइट? पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कुड यूज होता है. ठीक है, सो सबसे जो आप परमिशन लेते हो या कुछ भी, ठीक है, तो आप कुड यूज करो. रिमेंबर दैट. और सेकंड चीज, जो ये हमारे जितने भी है ना, कुड, वुड, शुड, राइट, ये सब आपके पास्ट में भी यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम पास्ट में चीज सोचकर बोल रहे होते हैं ना, आई वुड हैव कम, राइट? आई वुड हैव कम टू, आई वुड हैव कम माई सेल्फ, राइट? तो पास्ट में जब हम सोच रहे होते हैं ना कि मैंने ये किया होता, तब ये भी करेक्ट होता ना, आई वुड हैव कम बाय दिस टाइम. हाँ, आई वुड हैव. एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हो? दोबारा आओ, कम अगेन. या हेलो, या बोलो. आई वुड हैव कम बाय दिस टाइम और समथिंग, आई डोंट नो. आई वुड हैव कम बाय दिस टाइम, आई वुड, हाँ, मतलब जब हम, जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो कि आई वुड हैव अराइव्ड बाय, आई वुड हैव अराइव्ड बाय लेट्स से 10 पास्ट में, तो आप कर सकते हो. ठीक है मैम. हाँ. मैम, और जैसे आपने बोला could you sign here, we use it in the hospitality industry, right? Right. So ma'am, instead of like when you said, when we say can I come in, shouldn't we use may I come in, because that seems a little more formal, or maybe respectful rather. बताती हूँ. मे हम यूज तो करते हैं बिकॉज मे में अगेन देयर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. कैन बहुत फ्रेंडली होता है. but ये हम जैसे कहते तो हैं कि बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है. ठीक है, क्योंकि हम हमेशा से स्कूल में हम मे आई कम इन ही बोलते थे. जो फॉर्मल वाली जो चीज है ना कि मे ज्यादा फॉर्मल होता है, ये एक मिथ है. बट ठीक है, अब ज्यादा यूज होता है तो होता है, हम भी कर रहे हैं. So Yes, could ma'am. I come in भी हो सकता है, या वो that would be wrong completely. नहीं, could I come in is wrong. Wrong. Okay. One more thing, ma'am. आपने कहा कि जैसे it would rain tomorrow. Would में less surety है, तो उसमें भी हम कह सकते हैं it may rain tomorrow. It may rain tomorrow. हाँ. It might rain भी. दोनों में. Okay. Okay. See, just that it depends. हाँ. Ma'am, could you just tell the difference what's between future simple and future continuous? I mean, I'm like, will you be Sorry? Your voice cracked. Hello, ma'am, please. I can't hear you. Type कर दो if you don't mind, whoever it is. Maybe she was asking difference between future continuous and future simple. हाँ, तो बताओ कौन बताएगा? फ्यूचर प्लान, फ्यूचर एक्शंस जो सिंपल, जैसे मैं कल आऊंगी,
या मैं कल डांस करूंगी आज नहीं, ऐसा टाइप का जो सेंटेंस रहेगा दैट वुड बी फ्यूचर सिंपल। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब जो फ्यूचर के प्लान हो, जिसको हम विल या वुड दोनों यूज करके कह सकते हैं। विल में हम ज्यादा श्योर होंगे, वुड में हम थोड़ा कम श्योर होंगे। लाइक मुझे कल डेफिनेटली बाजार जाना ही है, तो आई विल गो टू मार्केट टुमारो, ये मैं बहुत श्योर हूँ। अगर मेरा प्लान चेंज होता है, वो मुझे लग रहा है आई एम नॉट दैट मच श्योर, तो आई कैन से आई वुड गो मार्केट टुमारो एक मिनट, बाय 5:30 और समथिंग। तो ये कौन सा टेंस है? दैट वुड बी फ्यूचर कंटिन्यूअस। वो सिंपल है ना। फ्यूचर में वो काम होगा, चालू प्रोग्रेस रुको, में रुको, बट रहेगा। इट्स रुको। हाँ जी, हाँ जी, रुक जाओ, यू आर मिस्टेकन थोड़ा सा, ठीक है? जी हाँ, जी। फरहान क्या बोल रहे थे? हाँ मैम, मैं बोल रहा था कि जो माही ने बोला वो एक्चुअली फ्यूचर सिंपल का एग्जांपल है। और हाँ, व्हेन आई से आई विल बी डूइंग दिस हाँ वर्क सॉरी, टुमारो, विल बी, करेक्ट एंड करेक्ट। आईएनजी जब लग जाता है देन इट बिकम्स द हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। continuous, आई वुड बी गोइंग या आई विल बी गोइंग, राइट ना? या जब भी आईएनजी हाँ, लग जाता हाँ, है। यस आईएनजी चाहिए, यस। ठीक है? इज इट क्लियर नाउ? माही, यहाँ पे आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इशू था, अभी क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी, आईएनजी लगेगा वर्ड के साथ, दैट वाज द मिस्टेक। हाँ, हाँ, अभी हेलो क्लियर? मैम, हेलो मैम। यस मैम। हाँ, हाँ, हाँ मैम, बोला अगर बी बी लगेगा, बी अगर होगा तो उसके बाद ही आईएनजी होगा। किसके बाद? विल बी, उसी के बाद ही आईएनजी हाँ, होगा। हाँ, विल बी अगर होगा उसमें तो ही हाँ, आईएनजी होगा, नहीं तो आईएनजी बी नहीं। आएगा ही आएगा, क्योंकि आई विल गोइंग होता है या आई विल बी गोइंग होता हाँ है ना? आई विल गोइंग तो हाँ। कभी नहीं बोलते बोलते आई विल ईटिंग, आई विल स्लीपिंग, बी तो आता ही है ना। बी आएगा उसके बाद आईएनजी होगा। हाँ, हाँ, ये तो रूल है, मतलब उसके बिना नहीं आएगा, ठीक है? कंटिन्यूअस को बनाने के लिए तो आईएनजी लगाना पड़ेगा ही। देखो, सिमिलरली अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस भी देखो, आई आई स्लीपिंग, आई ईटिंग थोड़ी ना होता है। आई वॉज ईटिंग, आई एम ईटिंग, ऐसे ही होता है ना हमेशा। बीच में हेल्पिंग वर्ब तो आता ही है। सब्जेक्ट के साथ। हाँ, तो ये याद रखो कि फ्यूचर में विल बी हो जाता है। ओके जी। यस सर, यस मैम। यस मैम। ओके, क्लियर है अभी? ठीक है, अब बताओ फ्यूचर परफेक्ट। ये नहीं पता। सोचो सोचो, थोड़ा सा सोच कर देखो सेंटेंस अपने दिमाग में। जस्ट ट्राई। मैम एक एग्जांपल याद आ रहा है। इट वाज लाइक when the parents will arrive, the kids will have gone to the bed. The kids will have slept. The kids would have slept, right? Yes ma'am. Exactly. So basically this is to talk about something that will be completed before a specific time in future. ठीक है, अब अपना पास्ट परफेक्ट याद करो। पास्ट परफेक्ट में क्या हो रहा था? जो पास्ट परफेक्ट में काम हो चुका था और वहीं पे खत्म भी हो गया था। बेसिकली पास्ट परफेक्ट में यही हो रहा था ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पहले कुछ खत्म हो चुका था, राइट? अभी मैम इट्स लाइक आई विल नहीं मैम, सपोज राम विल finish the gardening before they arrived, something. Mom, हाँ, हाँ, something that would have happened while the action will happen. ठीक है, मैं चलो आप सबको आई प्रोवाइड वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू। देखो, पास्ट परफेक्ट में ये था कोई चीज हो चुकी थी किसी और चीज से पहले, पर हो तो चुकी थी, राइट? फ्यूचर परफेक्ट आपका होगा समथिंग विच विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब फ्यूचर में एक टाइम पे कुछ हो चुका होगा। इज दैट क्लियर? Let me give you an example. The guests are coming at 8 p.m. I will have finished cooking by then. बताओ इसका क्या मतलब हुआ? 8 बजे तक गेस्ट आ रहे होंगे जब तक मैं खाना बना चुकी हूँ। जब तक गेस्ट आएंगे तब तक मैं खाना बना चुकी हूँगी। हाँ, बेसिकली जो 8 बजे जो वाला जो आपका इवेंट है, द गेस्ट कमिंग, आप basically yes ma'am,
बेसिकली खाना बनाना 8 बजे के पहले हो जाएगा, जो कि उस समय गेस्ट आ रहे हैं basically. हाँ, वो काम तब तक खत्म हो चुका होगा, राइट? Yes, ma'am. ठीक है. By the time we arrive, the kids will have gone to bed. ये तो भी आपने एग्जाम्पल ही दिया था, राइट? जी. So are we clear with future perfect? यस मैम, एक चीज पूछना है. बताओ. जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में बोला था आई हैव हैड दिस बिफोर, वही जब हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बोला था आई हैव हैड दिस बिफोर, पास्ट परफेक्ट में बोला था आई हैड दिस बिफोर बाय बिफोर 2011 और समथिंग, वैसा ही फ्यूचर में एक एग्जांपल दे दीजिए फ्यूचर परफेक्ट में. I will have had it. I would have had it. I would have had it by then. मैम प्लीज राइट इट डाउन. तो ये आपका हो जाएगा. I would have had by the time you arrive. I would have had my dinner by the time you arrive. I would have had. ठीक है? Okay. Ma'am, in the second sentence, by the time we will arrive नहीं होगा. नहीं, by the time we arrive होगा. This is a conditional. Okay, ma'am. Yes. You will arrive भी नहीं होगा. क्या? I would have had my dinner by the time you will arrive. नहीं. अभी Okay. एक conditional है, बताऊंगा. Conditional. Will is not required here. No. Yes. दो प्रश्न साथ में यूज नहीं होते. Yes, ma'am. By the time you arrive, ही बोलते हैं. Yes. मैम आपका माइक क्लोज करिए ना, आवाज धीमा आ रहा है. अच्छा, ओके. बेटर नाउ? हाँ जी. Ma'am, हाँ, बताओ. the sentence is correct that by the time my parents will arrive, or I would have gone to bed, like to I would have gone to bed. हाँ. It's fine. Ma'am, sentence पे by the time my parents arrive नहीं होगा, instead of we using will जरूरी है क्या उसमें? नहीं. By the time my parents arrive, will नहीं आएगा. हाँ, तो मतलब वही उसने एग्जांपल में will यूज किया ना, तो सॉरी, मैंने वो अपने आप ही बांध दिया कि will नहीं लगाया. सॉरी. Sorry. it's okay. We are all learning, so will नहीं आएगा. ठीक है? जी. अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस किसको याद है? According to the present perfect continuous and past perfect continuous, maybe it should be something जो फ्यूचर में ही शुरू होके फ्यूचर का ही एक स्पेसिफिक टाइम पे खत्म होगा, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है समथिंग. नहीं, खत्म होना जरूरी नहीं है. लेट मी गिव यू कंटिन्यू होगा ना मैम. I will have been cooking by the time you arrive. क्या मतलब हो? मैं वो कुकिंग कर रही होगी even when he after he arrives, he or she whoever it is. हाँ, so basically एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में एक टाइम पर चल रहा होगा. Okay. Basically to talk about actions which will be in progress at a particular point of time in future. मैम टू टॉक अबाउट वाला सेंटेंस दिखा दीजिए, लिख रहे हैं. मैम बट इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही तो हो गया, मतलब परफेक्ट कैसे यूज हुआ? अब लिखो इसको, फिर मैं दिखाती हूँ एग्जांपल. डन मैम. हाँ, कौन सा टेंस हुआ है? बताओ. मैम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस ही है. फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं. इज दैट क्लियर? हैव बीन भी लगा है ना. यस. ये लास्ट टाइम भी आप लोगों ने पूछा होगा तो मैंने एक्सप्लेन किया था. दिखाइए आई हैड हैड वाला केक वाला.
Mom, but is it right to use had like I had all the cakes before the guests arrived? Like, गलत क्या दिख रहा है? Just a question. I don't know. It is right. नहीं वो तो मुझे पता है it's right, but Hmm. just out of curiosity, तो क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि यार इसमें Yes, ma'am. गलत है, सुन के गलत क्या लग रहा शायद उनको आई थिंक गलत लगता है कि जैसे हैड और हैड दोनों साथ में यूज नहीं करते, काइंड ऑफ अ थिंग, एटलीस्ट एक ही साथ में। आपने लास्ट टाइम बोला था कि मतलब कई बार हमें ये पता नहीं होता है या पता नहीं था, मुझे भी पहले पिछली क्लास के पहले पता नहीं था कि 2 बार हैड एक साथ एक सेंटेंस में आ सकता है अगर वो मीनिंगफुल डिलीवरी कर रहा है आपके पॉइंट को। So that's what basically problem ये है कि हम लोग को लगता है ये have had काफी गलत है, बट देखा जाए तो लॉजिकली have और had as helping verb भी गलत नहीं है, राइट? ठीक है, और had और had मतलब helping verb भी गलत So है। ये this kind of sentence. या क्या आई थिंक वॉइस चला गया। हाँ, I could not hear anything. Yeah. Ma'am, I had all the cakes before the guest arrived is past perfect. तुम बताओ क्या होगा? Past perfect it should be. क्योंकि had है ना, आप सीधा ऑक्सिलरी वर्ब देखो ना, had है, राइट? Had है, yes ma'am. क्लियर है? Helping and हाँ जी। मैम एक्चुअली मैं ऐसे बहुत हम लोग जैसे I don't know, I find this ऐसे sentences more in novels when we read, if you read novels, वहाँ पे use करते हैं had and so yeah. See, obviously ये जो sentences जो गलत sound करते हैं, they actually make a lot of poetic sense. Yes ma'am. हाँ। Yes ma'am. So है तो सही, right? Yes ma'am. ठीक है, let's come to conditionals now. Yes. अच्छा, क्या? If you heat water, it boils. What kind of a sentence is it? It's a fact. The fact. Definitely it will happen. मतलब definite result वही होगा। ठीक है कि whenever you heat water. Universal fact है something. Yeah. मतलब ये हमेशा होगा ऐसा तो नहीं है ना कि कल था आज है कल नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं है। Right. If you don't brush your teeth, you get cavities. This is a fact. When you smoke a lot, you fall ill. That's a fact, right? So इसमें हम use करते हैं simple present और simple present. ठीक है? Simple present और? Simple present. If you heat water, it boils. हम ये तो नहीं कहेंगे ना if you will heat water, it boils. If you heat water, it will boil. So ऐसा ये तो तब हुआ ना कि heat करोगे तो boil हो जाएगा, मतलब कब? If you heat water, it always boils. Anytime you heat water, it boils, right? ठीक है, तो that is zero conditional. अभी तक तो ठीक है, but जब first पे जाएंगे तो समझ में आएगा कि zero conditional क्यों है. क्या? If it rains tomorrow, we will go for a drive. इसमें अगर वो होगा पहला वाला काम जो आप बोल रहे हो, अगर रेन होगा तो ही जाएंगे. So basically this is kind of a plan or kind of a possibility in the future जिसका होना कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी. Yes ma'am. Right. So that's dependent on the first part of the statement. Yeah. तो जो first part है अगर वो हुआ तो second part होगा. तो यहाँ पे हमने use किया simple present और future, right? Yes ma'am. ठीक है, अब आपको वो वाले सेंटेंसेस समझ में आए जो मैं कह रही थी कि वो बाय द टाइम पेरेंट्स अराइव होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये हुआ तो. ओके, इज दैट क्लियर? मैम हाँ बताओ. जीरो कंडीशनल में जैसे आपने बताया कि दोनों में हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट था, मतलब इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, और कोई रिजल्ट हो ही नहीं सकता है ना. फर्स्ट कंडीशनल में आपने बोला इफ इट रेन्स टुमारो वी विल गो फॉर अ ड्राइव, तो इफ इट वुड नॉट रेन
then also we can go drive for the drive. So इसमें चाहे हो चाहे ना हो दूसरा एक्शन मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं आप? इतना नहीं सोचना है, रुक जाओ, होल्ड योर हॉर्सेस। जी जी हम कहानी नहीं लिख रहे हैं, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ नहीं मैं पूछना, सुनो, हाँ बोलिए, आप बोलिए। तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बारिश नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी। यहाँ ओके पर आप ये देखो, डिपेंडेंट कंडीशन है, राइट? हम्म एंड इट मे और मे नॉट हैपन, ठीक है? सो ओके इट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट? और a plan or something which may or may not happen, it's dependent on the first clause, right? Which is raining या फिर second में taking rest, right? तो जो आपका independent वाला है उसमें हम simple present use करते हैं, और जो आपका dependent है जो future में होगा या नहीं होगा उसमें हम future use करते हैं, okay yeah exactly that's what I wanted to know. हाँ, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था ना, इट वाज अ लिटिल हाँ मैंने कंफ्यूजिंग, क्लियर नहीं डिफाइन कर पाई थी उसे। हाँ वो औरों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है? जी हाँ, दूसरों के कॉन्सेप्ट थोड़े हिल सकते हैं ना, सॉरी फॉर दैट। नॉट अ प्रॉब्लम। इफ यू टेक रेस्ट यू विल गेट बेटर, या इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्रैक द एग्जाम, राइट? सो पहली कंडीशन पे दूसरा डिपेंडेंट है, क्लियर है? यस मैम। आया जीरो और फर्स्ट का फर्क अभी समझ में आया कि हमारे पास जीरो और फर्स्ट कंडीशनल क्यों है, क्योंकि दोनों में फर्क है, यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, ओके? जी थर्ड कंडीशन, अच्छा, इफ आई हैड रीच्ड अर्ली आई वुड हैव मेट हर, क्या मतलब? अगर मैं जल्दी पहुंच गई होती तो मिल ली होती। तो व्हाट काइंड ऑफ अ सेंटेंस इज इट? दोनों डिपेंडेंट एक दूसरे पे, अगर ये किया होता तभी ना वो हो पाता। It denotes नहीं certain kind of possibility, like this thing can happen. सॉरी, सेकंड कंडीशन मैंने पहले स्किप कर दिया, पहले सेकंड पे आते हैं, ठीक है? सॉरी, एक सेकंड काटने दीजिए। यस मैम, वही मैम, हाँ बताइए। बीच में से मिस हो गया था, मैं खुद सोच रही थी ये क्या हुआ है सीधा। वही मैम, आई वाज आल्सो थिंकिंग यस। If I were the PM of India, I would travel around the world. Ma'am, it's basically first is also a possibility, or maybe अगर ऐसा होता तो then वो ऐसा करता, so है ना? yes मैम, both are मैम like a फर्स्ट कंडीशन possibility. फुलफिल होगा तो सेकंड कंडीशन होगा। मैं मतलब ये Uncertainty. अगर Uncertain, yeah. पॉसिबल होता तो शायद सेकंड का सोच सकते कंडीशन थे। में हाँ यस मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है तो सेकंड तो सेकंड बिल्कुल कंडीशन like नहीं होगा। हाँ And basically both of them are very uncertain. I mean, depending. yeah. Basically, if I were the PM of India, I would travel around the world. तो ये एक hypothetical, improbable, impossible situation है, Yes ma'am. Hypothetical, yes ma'am. hypothetical है। अब please don't tell me कि I am questioning your ability to be the PM. No, I'm not. अगर नहीं बन सकता है सॉरी, फ्यूचर में मैम कोई ना कोई तो बन सकता है फ्यूचर में ना। अरे मैम माही बनेगी ना। फरहान, I'm saying your name, you are suggesting my name. What is this? वो तो ठीक है, बन सकते, वो तो बन सकते हो, बट द थिंग इज, बट गिवन टुडे इस सिचुएशन में तो हम नहीं है ना, और हम पास्ट में जाके उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, राइट? So if I were the PM of India, I would travel around the world. Hypothetical situations या फिर wishes जो होती है ना, हम सोचते हैं कि यार अगर ये होता तो ये होता मेरे पास, right? If we had a garden, we could have a cat, right? He would travel more if he was younger, right? So hypothetical, improbable, impossible या thoughtful condition जो हो सकती थी, second conditional होता है, इसमें you have a simple past if I were,
and would plus the first form या could plus the first form, right? अब मैं आपको इसमें बता दूं कि कंडीशनल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनरली बोलते हुए ना हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं if I would have been the PM of India, I would have traveled around the world. Is it or not? गलत है वो। हाँ, वो गलत है लेकिन बहुत कॉमनली यूज्ड है। लास्ट क्लास में बताया था आपने मुझे। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी मैम, हाँ, जैसे फर्स्ट कंडीशन में आपने बताया था ना कि डिपेंडेंसी है क्लॉज की, मतलब जो सेकंड वाला हो रहा था, जैसे वी विल गो फॉर द ड्राइव एंड ऑल, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन इफ इट रेन्स टुमारो लाइक दैट। तो इसमें सिर्फ विशेस एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही डिपेंडेंसी या काइंड ऑफ डिपेंडेंसी ही है, राइट? हाँ, ठीक है, ओके, ये वाला क्लियर हुआ कि would have नहीं यूज करना। ठीक है, अब ऑब्वियसली सेकंड है तो उसके बाद थर्ड कंडीशनल भी होगा। अब पढ़ो ये वाला, if I had reached early I would have met her. seems like second, but we wish, yeah. Ma'am, this is basically an activity which has already happened, but the other activity could not happen because the first activity happened late. Something like that, yeah. But whereas the second conditional is everything is hypothetical. Here, if I had reached early, matlab, that is not hypothetical. So Here But- there is a possibility, like I would Yeah. have won. So yeah. बट देन जरूरी थोड़ी ना है कि वो पहुंच भी जाते तो मिल ही लेते, मतलब आई डोंट नो। वो फिर अज्यूम कर रहे हैं ना हम लोग अपने आप से अज्यूम कर रहे हैं फिर उसको। तो मैम आप बता दीजिए। बात नहीं, मतलब आई एंजॉय योर डिस्कशन, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं इसलिए चुप हो जाती हूँ बिकॉज़ आई वांट एक्चुअली अ गुड वे। मैम का जीडी सेशन हो रहा है हम लोग। मतलब तुम लोगों को ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे डिस्कशन को जीडी की तरह सुन रही हूँ। हंसते भी होंगे आप कभी-कभी हमारे स्टूपिड क्वेश्चन से। नहीं ऐसा नहीं है। See, I listen to you guys because कई बार क्या होता है कि जब आप लोग डिस्कस करते हो ना, तो उसमें में आप लोग एक दूसरे को करेक्ट करते करते ठीक आंसर पे पहुंच जाते हो। So basically this is a possible outcome in the past. If I had reached early I would have met her. Right? अब यहाँ पे आपने टेंसेस का चेंज देखा, पास्ट परफेक्ट हो गया, would have met हो गया, राइट? सो बेसिकली पास्ट परफेक्ट यहाँ पे देखा जाए तो टू इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं पास्ट के। तो जो इवेंट पहले होता उसमें मैंने पास्ट परफेक्ट यूज कर दिया, इट जस्टिफाइज द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट, राइट? ठीक है, अब आप दूसरा देखो, इफ आई हैड रीच्ड अर्ली आई वुड हैव मेट हर। तो वो जो मैं आपको बता रही थी ना, वुड हैव सिर्फ यहीं पे यूज होगा। अब इसमें बच्चे और गलती कहाँ करते हैं, इफ आई वुड हैव रीच्ड अर्ली आई वुड हैव मेट हर, वो गलत है। ठीक है, सॉरी क्या गलत है, फिर से बताइए। If I would have, मैम ने बोला आई थिंक। दो बार वुड हैव गलत है यहाँ पे। ओके Okay, if I would have reached early, I would have met her. That would be wrong. Yes. तो ये past perfect plus past perfect ना? क्या? The sentence tenses combination मैडम। Past perfect plus would plus have plus the third form. Okay. Plus would. Okay, is it clear? हाँ जी, third Yes. form जी। Yes. Okay. मैम हेलो मैम। हाँ बताओ। मैम बोलो, वो सेकंड सेंटेंस तो पास्ट परफेक्ट है ना, और फर्स्ट सेंटेंस? हाँ, फर्स्ट तो पास्ट परफेक्ट है। ओके ठीक है, चलो अब कुछ क्विक क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। ये बताओ, Ask हाँ, आई ऑलवेज आस्क, क्योंकि ये तो रूटीन है, हमेशा करते हैं।
मैम एक बार बैक जाइए। हाँ। इसमें जो पहला वाला आस्क के ऊपर जो लिखा है वो आप बोल के बताइए। क्या? When I go on holidays, I always ask my neighbor to water my plants. हाँ, that I understood. आस्क के ऊपर वो asked, that pronunciation I'm asking. अच्छा, asked. फिर से बोलिए। अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम है, asked बोलेंगे क्या बोलेंगे, राइट? हाँ, उसका pronunciation I always pronounce it wrong. तो हम इसको asked ही बोल देते हैं, बीच में से के साइलेंट हो जाता है। Okay, asked. Okay, K should be silent. Okay. क्योंकि asked बोलने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ही weird हो जाएगा। I always say asked, which is सभी मुझे बोलते रहते हैं इनकरेक्ट है, मुझे समझ नहीं आता था। अभी के साइलेंट करके बोलना है, asked. Correct? So Okay. we Americans है, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी। ये बताओ। Ma'am, explain. Explain. If I explain. If I explain, she If will I be explain. happy. कौन सा कंडीशनल है ये? Is present. नहीं, फर्स्ट कंडीशन। ये कंडीशनल 1 है। If it rains tomorrow, we will go, right? फर्स्ट कंडीशन ना? First condition, yeah. First, ठीक है? प्रेजेंट का प्लस फ्यूचर का। ये बताओ। If we won't hurry up. We'll be late for the film if we Won't hurry up. If we don't hurry up. if we don't hurry up, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या चाहिए? प्रेजेंट चाहिए। Yes, ma'am. वो सेंटेंस प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना। समझ नहीं आया मैम ये। फरहान समझाओ। Will be late for the film is like saying, like I am saying right now to you, okay? It's like in present, right? So, and that's why it's like will be late for the film if we don't hurry up. So it ends in simple only. So, yeah. That combination मैम I didn't understand tenses का। पहले sentence and second sentence में। देखो, basically it's like we'll be late if we don't hurry up. तो प्रेजेंट में अगर हरी अप नहीं करेंगे तो फ्यूचर में लेट हो जाएंगे। So ये फ्यूचर का प्लस प्रेजेंट का था। हाँ। Okay. If I didn't need the money, dash less. Ma'am, third wala, I did work this, I think. I would work I less. would work less, ma'am. Yeah, I would work less. Yeah. That's right. If you Ma'am, if you get a Red card. if you get a red card. I get home. I get home. Yes, ma'am. As soon as I get home. I would study English. I would study क्योंकि past में सोच रहे हो। Yes. Yes, ma'am. I won't worry if I were you. I were you. If I were you. Yeah. I finish my work. I finish my work. I finish. As I have time. Have time. Have time, yes, ma'am. If I care what people think, I would have. I would have a boring life. Very boring life. As you have. As you have the email. Yeah. You have था ना? Yeah. हाँ. As long as you have the email. हाँ.
I get a I get a headache. I get a. Get a headache. I get a headache. हाँ. If I were you. You are. If I were you, I'll go to the doctor. Yes, ma'am. Would be. Would be delayed. Be delayed if I don't finish this report on time. If I will buy. I will. Or think again. Won't का मतलब would not होता है क्या? If I buy, I think, ma'am, if I buy होगा. it'll be the If I second. buy the more expensive bike, I won't have enough Ma'am, money. मैम won't का मतलब would not होता है क्या? बताओ. Will not. Won't is Will not. Will not. Okay, तो अगर will not है तो हाँ, तो फिर if I buy. If I buy. Would not तो won't होता है. Wouldn't हो जाएगा. ULD. Okay. Okay. Apostrophe D. Won't माने will not ना? Yes. ठीक है, तो if buy होगा. Is this clear? Yes, हाँ ma'am. जी. ठीक है, अब टेंसेस में कोई गलती नहीं होगी. Yes, ma'am. वो तो एग्जाम दोगे आप तब पता चल जाएगा. हम एग्जाम में टेस्ट के लिए ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप ही आते हैं अगर आते हैं तो. I tell you what, generally आते तो देखो fill in the blanks टाइप से हैं. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर किसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट? The only thing is कि once in a while कभी-कभी उनका भी मन कर जाता है एरर देने का, एरर करेक्शन डिटेक्शन. Okay. अगर कर भी दिया ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं आते. Like you guys won't have a problem because आपने already advanced level की किया है. और मैम, sorry to disturb you. I'm sorry to cut you in between, ma'am. I just wanted to know, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, like which one is like the future perfect tense or something, which of these statements? डायरेक्ट टेंस पूछ सकता है. डायरेक्ट टेंस. इजी नहीं हो गया. मैम एक बार ही आप टेस्ट ले लीजिए ना. स्कूल टाइप हो गया. क्या? एक बार ही आप टेस्ट ले लीजिए या और एक्सरसाइज करवा दीजिए. हाँ, मैं एक और एक्सरसाइज आपको एक दिन करवा दूंगी, बट देखो जो आपने बोला वो थोड़ा ज्यादा इजी हो गया. Ma'am. One thing you can get is कि parts of speech कभी-कभी आइडेंटिफाई करने को आ जाते हैं. तो निशांत सर ने एक क्लास में लिया था आपका parts of speech पे, आइडेंटिफिकेशन पे. मैं मान सकती हूँ once in a while वो आ सकते हैं, बट टेंस आइडेंटिफाई करने को मुझे नहीं लगता. तो ग्रामर डिफाइन करे ऐसा हो गया. क्या? I always get confused between parts of speech and figure of speech. Figure of speech is simile, metaphor and all, ना मैम? हाँ, poetic device. Okay. Ma'am. हाँ. जो error correction में है ना मैम, I get wrong with the commas usage. Like how should I correct it? Ma'am, use of comma and semicolon also something. अच्छा, so basically आपको conjunction में दिक्कत है. हाँ, kind of. Sorry, conjunction नहीं, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं इसको? Punctuation. Sorry. Punctuation. मतलब हाँ भी कर दिया सबने. Wow. Great. नहीं हाँ नहीं बोला था. बोला था. मैम नहीं. मैम हाँ ये कॉमा कभी कहाँ पे सेमीकोलन कहाँ यूज करना चाहिए, कोलन कंजंक्शन पे एक क्लास है अभी पंक्चुएशंस पे. पंक्चुएशन मैम, नॉट कंजंक्शन. सॉरी. अब देखिए मैम खुद ही बोल देंगे देखो. Maybe you purposefully said wrong कि इस बार भी हम लोग हाँ बोल देते हैं कि नहीं. No, maybe इस बार हम लोग को ज्यादा attentive हो गए ना. So ma'am, there would be a class on punctuations, like you'll cover. In fact, coming few classes में आपका punctuation का class होगा, so don't worry about that. Yeah, okay. Punctuations also ma'am and question tags वाला भी आएगा क्या? क्योंकि बोलूं नहीं बोलूं? बोलो सुन रही हूँ मैं. मेरे को अभी तक बोलो सुन रहे. बोलो. आपने वो टेस्ट में ना एक क्वेश्चन आया था कि ही इज अ गुड प्लेयर एरर फाइंडिंग में, मतलब उसमें पूछा था कहाँ पे क्वेश्चन टैग रॉन्ग यूज किया है. तो उसमें लिखा था कि ही इज अ गुड प्लेयर इज इट ऐसा करके. तो मैंने उसको रॉन्ग क्यों किया, क्योंकि ही बोला था तो इज ही लिखा होता ना, तो मैं शायद उसको करेक्ट सेंटेंस समझ लेती, लेकिन मैंने उसे इज इट समझ के रॉन्ग कर दिया कि इट क्यों बोला, ही या शी कुछ ऐसा होना चाहिए था. बट घर आके मैंने जब चेक कर रही थी अपना क्वेश्चन आंसर्स,
आंसर शीट आने के बाद, तभी मैंने देखा समझा कि जब क्वेश्चन में ऐसा होता है, मैम आई एम नॉट कंफ्यूजिंग अदर्स बट मैं अपना डाउट पूछ रही हूँ। अभी तक तुम्हें बात ही नहीं समझ में आई, तो बोलो पूरा पहले। हाँ, सो उसमें अगर ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन में पहले नेगेटिव नहीं यूज हुआ होता, जैसे ही इज अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पे इजंट ही होना चाहिए, मतलब यहाँ इज नॉट नहीं था ना फर्स्ट पार्ट में, ही इज अ गुड प्लेयर, इजंट ही, ऐसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन टैग्स वाले भी अगर आप थोड़ा बता देते, अगर टिस में आते हैं तो। माही, ये एक बार मुझे ये भेजना क्वेश्चन। मैंने आपको भेजा था, मैं फिर से भेजूंगी। ऐसे थोड़ा आई थिंक दैट में भी आया था ना, इनफैक्ट अभी तुरंत भेज दूं ताकि आप थोड़ा सा क्लास में बता पाए। आप मुझे भेज दो, बिकॉज आई लुक एट इट, और इस पे और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई सर्च फॉर सम क्वेश्चंस एंड डू इट इन अ क्लास। जी, मैं मैम तुरंत ही जिस आपको टाइप का स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैम जिस टाइप का पोयम पैसेज ज़ैट में आया था, हमको वो टेस्ट में आ सकता है क्या? अरे नहीं, मजाक कर रहे हो। तो मतलब कहीं भी आसपास भी नहीं। मैम कार्तिक क्यों डरा रहे हो? आई थिंक यार कार्तिक नहीं critical बोला। reasoning tough एक्चुअली मैं आएगा मैम क्या? से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़ैट में तो कर नहीं पाए हम वो। हाँ, वो तो टेस्ट है में ही। अगर आता है तो कर लेंगे। नहीं Yes. नहीं, टेस्ट में नहीं आएगा। और देखो, टेस्ट में अगर गलती से आ भी गया ना, इसको इस टाइप का कुछ जो हमने क्लास नहीं की थी, सिमिली मेटाफर सिर्फ आइडेंटिफाई करने वाला सिंपल सा, वही आएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। Ma'am, जो Figures टिस्ट of का speech. questions do they ask on poetic devices like figures of speech and all? हाँ, वो आएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच तो मैम पढ़ाया है ना क्लास में हमें। सुनो, इसमें कभी आया नहीं है, राइट? ओके। बट मान लो किसी दिन उनका भी मन किया, लाइक ऑल अदर्स हम भी देंगे आज तो। ओके। वो सिंपल लेवल का देंगे तुम्हें, वो मतलब नॉर्मल सा जो होता है जो बच्चे आइडेंटिफाई कर पाए। अब वो तुम्हें लेट्स से बहुत ही डिफिकल्ट पोइट्री निकाल कर नहीं देंगे, जॉन मिल्टन की। Ma'am, so उसका वीडियो अपलोडेड है YouTube पे, like I haven't attended that class. उसका वीडियो है। और ऋतिका, कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार ग्रुप पे भेज देना। इनफैक्ट आई वुड वांट ऑल ऑफ यू, जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, जैसे माही के पास अभी था, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप लोगों के पास हैं, प्लीज सेंड देम टू मी so that I can compile them and have a class. Okay, done, ma'am. मैम वो सिमिलर मीनिंग्स वाली क्लास भी एक रख लीजिए, नॉट सिनोनिम बट लाइक वो सिमिलर मीनिंग वाले जिसमें काफी हार्ड टर्म्स आ जाते हैं और उनके मतलब ऑप्शंस भी हार्ड होते हैं, लाइक उससे पता नहीं चलता कि कौन सा है। ठीक है, सिनोनिम्स एक बार प्लीज कार्तिक का प्लीज सिनोनिम्स अलग, सिनोनिम्स तो पता चल जाते हैं, वो कुछ और ही था मॉक में। हाँ ठीक है। नियरेस्ट मीनिंग कुछ होगा। मैम क्रिटिकल रीजनिंग भी टेस्ट में आता है? नहीं आता, कुछ नहीं आता। क्रिटिकल आज तक तो आई नहीं। और अगर देखो बेसिक एक आध क्वेश्चन, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, गलती से आ भी जाए ना तो वो आप कर चुके हो, उससे ऊपर माने सिर्फ पैसेजेस रीड करके हमें आंसर निकालना है, ऑथर की टोन्स पता होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। ग्रामर का कंपैरेटिवली इजी होते हैं। अच्छा, माने वही ना मैम कि पैसेज से आंसर निकालना, ऑथर का टोन वोन समझना, ये सब का प्रैक्टिस करें, ग्रामर प्रैक्टिस करें ताकि एरर फाइंडिंग है फिल इन द ब्लैंक्स कर पाए और एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर पाए। करेक्ट? हाँ। ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से निकाल के आप प्रैक्टिस करवा दीजिए। हाँ, हम ये कर सकते हैं, टेस्ट के पुराने पेपर्स कर सकते हैं। हाँ प्लीज मैम, जैसे वो बहुत हेल्पफुल होगा। लास्ट टाइम पे अचल सर ने डिसीजन मेकिंग के खूब सारे करवाए थे, तो काफी हेल्पफुल रहा था एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट से, तो इसमें भी कर सकते हैं। एक बार प्लीज ग्रुप पे पोस्ट कर देना सो दैट आई डोंट फॉरगेट। इफ आई फॉरगेट तो किसी को तो याद रहे। ठीक है? नहीं, मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगी और आपको भी रिमाइंडर दे दूंगी। ऑल राइट गाइस, Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. Bye, everyone. Good night. Good night. Bye.